नमस्कार, मैं रवि कुमार मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम आपका एमपी में। जी हां, आज हम जिस सांसद से बात करने जा रहे हैं वो एक महिला सांसद है। जी हां, हरियाणा के 10 लोकसभा सीट में एकमात्र ऐसी महिला सांसद जिन्होंने जीत हासिल की। जी हां, ये नाम और कोई नहीं, ये नाम भाजपा की लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल का है, जिन्होंने सिरसा से विजय हासिल की थी और उस समय के हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को उन्होंने 3 लाख के ज्यादा मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं आपके सांसद से बातचीत, पूछते हैं कुछ सवाल कि आखिर उन्होंने आपके संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया। चलिए मेरे साथ। ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਸਾਇਰ ਸ਼ੇਖ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਖਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗਠਨ 1962 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ 1962 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1999, 1998, 1999 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਸਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 5 ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, 3 ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ। नौ विधान सभा हल्कों की गल करिए तो नरवाना, टोहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा और ऐलनाबाद इस लोक सभा सीट का हिस्सा ने। सिरसा लोक सभा सीट से 2019 में होईयां आम चोणां के मुताबिक कुल वोटरां की गिनती 16,60,557 सी, जिन्हां चों मर्द वोटर 8,86,303 ਅਤੇ महिला वोटर 7,74,254 सन। सिरसा सीट का सियासी इतिहास समझना होवे तां हरियाणा के पंजाबी बोलते इलाकों में सिरसा शामिल है। सूबे का सरहदी जिला है ते पंजाब के नाल अपनी हद सांझी करता है। कांग्रेस ने इस सीट से सब तो वध 9 बार जित हासिल की है तां इंडियन नैशनल लोक दल ने भी इस सीट से जित का स्वाद चखिया है। डेरा सिरसा की मौजूदगी इत्थे हर तरीके की सरगर्मियां नूं वधाउंदी है। सियासी जित हार के इतिहास की गल करिए तो लोक सभा चोणां विच 1962 विच कांग्रेस के दलजीत सिंह, 1967 विच कांग्रेस तो चौधरी दलबीर सिंह, 1971 विच फिर चौधरी दलबीर सिंह ते 1977 विच जनता पार्टी तो चौधरी चांदराम जेतू रहे सन। 1980 विच कांग्रेस के चौधरी दलबीर सिंह ने एक बार मुड़ जित हासिल की ते 1984 विच उन्होंने इस जित नूं दोहराया, जबकि 1988 विच चौधरी हेतराम ने लोक दल तो जित हासिल की। 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। 1991 ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੰਦੋਰਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1999 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੁੜ ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੰਦੋਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा सिंह गिल कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट बने। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲਿਆ।
2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਸੀਟ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,14,351 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4,04,433 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ JNKP ਤੋਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 95,914 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ 5,06,370 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਨੂੰ 3,90,634 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਇੰਦੋਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ 2,41,067। ਹਾਲਾਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैम, सीधा सवाल शुरू करते हैं कि आपने बीते वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं? देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मेरे इलाके की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए था। मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम काम जो है वो मैं रेलवे की उसमें करवा सकूं। उसी के तहत मैंने बहुत सी गाड़ियां जो हैं उनका स्टॉपेज करवाया। सबसे जैसे आप देखिए कि जैसे ही मैंने शपथ ली थी तो जो मेरा मेडन स्पीच था वो था कि गोरखधाम ट्रेन जो है वो रुकनी चाहिए, जो लंबी कम से कम कई दशकों की हमारी मांग थी। और मेरे वहां पर वो रखने के बाद उसके बाद हमने माननीय रेल मंत्री जी से बातचीत की और धीरे धीरे आप ये देखिए कि 1.5-2 साल के अंदर अंदर जो है वो गोरखधाम ट्रेन अब सिरसा में रुकने लगी है, बल्कि मैं भी उसी से ही जाती हूँ और वापस आती हूँ। और इसके साथ साथ आप अमृत स्टेशन के अंदर जो हमारा सिरसा है उसमें करोड़ों रुपया लग के वो स्टेशन नया बनेगा। नरवाना स्टेशन हमारा करोड़ों रुपया लग के नया बनेगा। हमारा मंडी डबवाली का स्टेशन, हमारा कालावाली का स्टेशन, भट्टू का स्टेशन जो उनसा है वो रह गया था, उसको भी मैंने कह के उसमें जो है डलवाया है। और अभी बल्कि नई एक और आपके माध्यम से मैं हमारे फतेहाबाद जिले के जो वासी हैं उनको खुशखबरी देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द जो है वो क्लियर हो गया है, बिल्कुल किसी भी दिन आकर उसको हरी झंडी देते हुए भट्टू के अंदर भी जो है गोरखधाम ट्रेन जो है वो उसका स्टॉपेज हमें मिला है। त्रिपुरा सुंदरी की हम बात करें, जो हमारी जम्मू तवी ट्रेन है उसका हम डबवाली में स्टॉपेज की बात करें, अभी एलनाबाद वालों को रामेश्वरम की जो एक नई जो हमारी इतनी दूरी की लंबी दूरी की जो हमारी ट्रेन है जो साउथ से हमें जोड़ती है उसका स्टॉपेज मिला है, उसका भी मुझे हरी झंडी दिखानी है। और इसके साथ साथ एक और नई फिरोजपुर वाली जो ट्रेन है उसका भी हमें स्टॉपेज मिला है। तो ऐसी कितनी हमारी जो ट्रेन्स हैं जिसका हमें अब वहां पर कनेक्टिविटी मिली है और मैं बहुत इस बात के लिए माननीय रेल मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। और इसके अलावा भी आप ये देखिए, अगर मैं बात करूं कि जैसे हाईवे है, हाईवे के ऊपर हमने 4 जो हैं वो नए जो हैं ओवरब्रिज बनाए वहां पर, जिसकी वजह से जो है अब हिसार से लेकर सिरसा तक बहुत कम समय में हम लोग पहुंच जाते हैं। और जिसमें हम जैसे धांगड़ है, दरियापुर है, बड़ोपल है, और तो ये 4 वहां पर। इसके अलावा जो हमारा हासपुर एक चौक है उसकी बड़ी डिमांड थी कि जी वहां पर एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ पर भी हमारा पुल बनना चाहिए। और हमने हासपुर में भी अब पुल बनना शुरू हो गया है। तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत से गांव के, तो उनको इस बात की इतनी खुशी है कि हम जो मांग लेकर जाते हैं उसको हम बड़ी तन्मयता के साथ हम उसके पीछे लगकर उसको काम को करवाते हैं। इस तरीके से सिरसा के बगल का राज्य राजस्थान भी है, पंजाब भी है और तमाम जाति वर्ग व्यक्ति विशेष के लोग रहते हैं सिरसा में। और नशा को लेकर काफी लोग सतर्क हैं, सचेत हैं। कई हिदायतें दी जाती हैं कि युवाओं को दूर रखना है। नशा मुक्ति केंद्र खोलने की एक बात थी, उसको कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। वहाँ के जो समाज है, वहाँ के जो परिवार है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा इन सब चीज़ों से दूर रहें। देखिए, जो सिरसा के अंदर नशा मुक्ति केंद्र है उसको और एक्सटेंड किया गया है, उसको और ज्यादा जो है उसके बेड बढ़ाए गए हैं। मुझे सीएमओ साहब ने अभी जो जनसंवाद के हमारे कार्यक्रम थे इसी में उन्होंने बताया। डबवाली के अंदर भी नशा मुक्ति केंद्र है। और इसके साथ साथ आप देखिए कि पिछले दिनों जनसंवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो वो डबवाली को जो है पुलिस जिला घोषित करके गए और अब बाकायदा वहां पर जो एसपी हैं वो बैठने लगे हैं और जो पूरा डबवाली जिला है उसके अंदर पुलिस को बड़ी मुस्तैदी के साथ ये जो है दिशा
निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नशे के व्यापार के अंदर लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके बाद से आप ये देखिए कि काफी ज्यादा उसके अंदर फर्क पड़ा है। और इसके साथ साथ हमारी सरकार ने नशा मुक्ति के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसके तहत बहुत से ऐसे जो इस नशे के व्यापार के अंदर लिप्त थे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया गया। करोड़ों करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश हुई है। तो जब इस तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी टूटती है तो उनको अपने आप लगता है कि हम इस नशे के कारोबार के अंदर ना जाएं। तो इस तरह की कार्रवाई से नशे के ऊपर हम काफी हद तक रोकथाम लगाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जो बच्चे इसके गिरफ्त में आ चुके हैं उनको कैसे बाहर निकालना है, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, इसकी तरफ हमारा फोकस है। इसलिए हम समय समय पर जो है इस तरह के जागरूकता के अभियान जो चलाते रहते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी साइक्लोथॉन करके पूरे हरियाणा के अंदर साइकिल के माध्यम से जो है सभी युवाओं को साथ लेकर जो है वो कई जगह पर रैली निकाली, और ताकि हमारे युवा जागरूक हो सकें और इस नशे की लत से अपने आप को दूर रखें। जो डबवाली से लेकर के हिसार तक का नेशनल हाईवे है वो काम हमारे समय में शुरू हो गया। हमने ही वो मंजूर करवाया सारी चीज़ें। कोई नया हाईवे निकला नहीं इस संसदीय क्षेत्र से। ढाणियों की बिजली का मामला पुराना है, वो मैं समझता हूँ कि आज भी यूँ का यूँ खड़ा है। हमने उस समय पॉलिसी बनवाई थी सरकार से जिसमें 400 करोड़ रुपए की लागत से नए मीटर आने थे जो एग्रीकल्चर फीडर से उसको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते। गुजरात से आने थे, वही गुजरात के ट्रांसफार्मर आज तक नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी 9 साल में ये सरकार नहीं बना पाई। यूँ कि यूँ पाइल्स उसके बैठ गए और 9 साल में उसने कोई बहुत ज़्यादा बाउंड्री होने के अलावा कोई तरक्की नहीं देखी। नए स्कूल वो कोई नहीं बने, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आई, कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं लगे। मैं ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 6-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਹਜੇ ਉਹ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਮਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਧਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠਹਿਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੱਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ मैं समझदा कि सारे उन्होंने 100% कराने की कोशिश की है। संसदीय क्षेत्र में जब से सांसद दुग्गल बनी है तब से कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। और जो मतलब इन्होंने बोला था कि फतेहाबाद को रेलवे लाइन से, हिसार से और दाखिल से जोड़ेंगे, वो प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है। सड़कों का बुरा हाल है। और जो बाढ़ आई थी वो जो किसान है आज वो धरने पर बैठे हैं, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। उनके जो मुआवजा उन्होंने सरकार ने देना था उस बारे में कोई बात नहीं करी। और आम जनमानस मतलब में कोई ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि कहा जा सके कि भाई हाँ सांसद ने कुछ काम किया है। माननीय अब सांसद जी पिछले काफ़ी समय से जब से सांसद बने हैं उसके बाद रतिया के अंदर आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता भी कोई विकास होगा। हमने खुद ग्राम पंचायत की समस्या हो चाहे वो शहर की समस्या हो, हम खुद सांसद के पास जाकर लिखित में भी दिया था कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको सुनी जाए, लेकिन सांसद ने अभी तक कोई भी उनकी जायज़ा नहीं लिया। हमने देखा कि कई जो सांसद हैं अपने संसदीय क्षेत्र से जो लोग आते हैं कुछ छोटी छोटी समस्याएं लेके आते हैं
वो आपने मैंने भी देखा है कि आपके यहाँ लोग आते हैं, आप सुनते हैं और जेन्युइन समस्या होती है तो आप उनको सॉल्व भी करते हैं। मगर कई ऐसे आपके क्षेत्र से कुछ लोग हैं, विपक्ष भी है, वो कहता है कि मैम बहुत एब्सेंट रहती हैं, बहुत कम आती हैं संसदीय क्षेत्र में, क्या जवाब देंगे उन्हें? विपक्षी जब किसी के खिलाफ कुछ ढूंढने निकलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए। मेरे खिलाफ जब कुछ भी नहीं मिलता है कहने सुनने के लिए उनको, तो फिर वो सोच समझ के सोचते हैं कि क्यों ना हम ये बात कहें। और ये बात है बहुत पुरानी, जब कोरोना जब चला था तो सबके सब जो है जिस तरह से अपने घरों के अंदर कैद थे, वो कुछ थोड़ा सा समय ऐसा था कि जिसमें जो है वो हर किसी की ही उपस्थिति अपने अपनी जगह पर बहुत कम थी। हम लोग आप देखिए ना कि हम लोग उस समय कैसे माहौल में थे कि अपने घरों से बाहर निकलते भी हम लोग हिचकते थे, और किस तरह से पूरा का पूरा एक जनता कर्फ्यू जो है उस समय में लगा था। केवल उस समय को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो मैं लगातार हमारे जो लोकसभा के वासी हैं उन लोगों के बीच में रहती हूँ, उनकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर मैं जो अधिकारीगण हैं केंद्र में, जो मंत्रीगण हैं उनके पास रखती हूँ, और जो यहाँ की योजनाएं हैं उनको धरातल पर कैसे लागू किया जा सकता है वो मैं उनको जाकर बताती हूँ। और अभी भी आप ये देखिए, आपको मालूम होगा कि पिछले पूरे एक हफ्ता से जो है आप अपने क्षेत्र में ही थी, पूरा समय दिया आपने वहाँ। पूरा एक हफ्ते तक जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सुबह से लेकर रात कम से कम 12 से 1 बजे तक लोगों के साथ रहना, लोगों के बीच में रहना, सभी अधिकारी हमारे साथ रहते थे और उसमें हमने जनसंवाद कार्यक्रम किए और बहुत ही सफल वो कार्यक्रम रहे। जो भी लोगों की समस्याएं थी उनको हमने अधिकारियों को कह के उसी समय में उनका समाधान किया, और जो बाकी कुछ ऐसी समस्याएं थी कि जिनका समाधान बाद में हो सकता था तो वो सब के सब हम उनके कागजात लेकर हमने अधिकारियों को दिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमें सुनिश्चित करवाया कि जो काम ऐसे हैं कि जो चंडीगढ़ में होने वाले हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ज्यूरिडिक्शन के हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पास भेजिए, सहज रूप से हम वो सारे काम जो होने वाले हैं उनको करेंगे। तो इससे ज्यादा मुझे लगता है कि पब्लिक के बीच की कनेक्टिविटी आज तक पहले कभी किसी भी जनप्रतिनिधि की नहीं रही जितना कि हमारी है। हम एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और राज्य में यानी हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसे में लोगों की उम्मीद, अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों की उम्मीद है कि एक बड़ा उद्योग सिरसा में आए, आसपास के लोगों को रोजगार मिले और वो अपनी जीविका चला सके। ऐसे में कोई बड़ा उद्योग जो सिरसा में आया हो? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि हमारा सिरसा जो जिला है उसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड जो है वो प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा कीनू है उसके लिए वहां पर जो है स्पेशल प्रोविजन किया है कि वहां के कीनू को जो है और ज्यादा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ साथ बल्कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट इसके माध्यम से कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि वहां पर जो फूड प्रोसेसिंग पार्क है वो बन सके। अभी पिछले दिनों माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए थे अमित भाई शाह जी, और वो भी बताकर गए थे कि किस तरह से वहां पर जो डबवाली के अंदर जो चाहे हम चौटाला की बात करें और भी जगह जो है वहां पर फूड प्रोसेसिंग पार्क जो है उसके लिए जो है सभी कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द जो है हमारी कोशिश रहेगी कि वहां पर ये सब चीजें शुरू हो चुके हैं। और इसके साथ साथ और भी जो है कोई उद्योग ऐसा आ सके, इसके लिए मैं हमारे उद्योग मंत्री जी से भी और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में बातचीत करती रहती हूँ कि हम क्या यहाँ पर और ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर और अच्छे उद्योग धंधे लगें ताकि हमारे युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिल सके। एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि 2019 के चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर मैदान में थे और एकमात्र महिला, 10 लोकसभा सीट से एकमात्र महिला मैडम आप जीत के आए, तो अब जबकि 33% वुमेन रिजर्वेशन की बातें हो रही हैं और जल्दी ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा आने वाले वर्षों में, हम क्या उम्मीद रखें कि क्या एक बार फिर से मैडम सुनीता दुग्गल को हम मैदान में देखेंगे लोकसभा चुनाव नजदीक है? ऐसा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूं और जिस तरीके से नौकरी छोड़ने के बाद मुझे राजनीति के अंदर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना मान सम्मान देकर यहाँ